Okay, good morning, students. So, in the last lecture, what we have discussed, if you remember the last lecture, let us recapitulate the last lecture. In the last lecture, we have discussed about the thermal conductivity of the cylinder, or sorry, the thermal resistance of the cylinder. We have calculated as this value, ln R2 by R1 divided by 2 pi KL, as well as we have also calculated the R sphere. Okay, we have not derived actually this equation. You can derive that equation either by using the heat diffusion equation for spherical coordinate, or you may directly use the Fourier law to find out this equation, like we find it out for the cylinder. ठीक है, जैसे हमने सिलेंडर के लिए ड्राइव किया था उसी बिल्कुल सेम तरीके से अगर स्फीयर के लिए चाहो तो ड्राइव कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से भी। ठीक है, तो जो भी मेथड तुम्हें अच्छा लगे उससे तुम कर लेना इसको ड्राइव, अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये जो था हमारा, दिस इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द स्फीयर। ओके, दिस इज द कंडक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू द स्फीयर and this is the conductive resistance during the cylinder. You must remember these two equations because in the numerical problem you have to apply these equations. For the R cylinder, you have to remember it is ln R2 by R1 divided by 2 pi KL, where R2 is the outer radius of the cylinder, R1 is the inside radius of the cylinder, and 2 pi KL, 2 pi is constant, K is the thermal conductivity of the cylinder, and L is the length of the cylinder. Okay. Similarly, for the sphere, the R2 is the outer radius of the sphere, R1 is the inner radius of the sphere, divided by 4 pi R1 R2K, where R1 R2 as you know, and the K is the thermal conductivity of the स्फीयर मटेरियल। ठीक है, जिसका भी स्फीयर बना है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो ये होगी। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द GATE exam is concerned, as well as in your university exam also. Many questions has been asked from this topic, and this is very important topic. This is also very practical topic, that is known as the critical thickness of insulation. Okay, so we will start today this topic, the critical thickness of insulation. What is the critical thickness of insulation? We will discuss about that. ठीक है, तो जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और जितनी भी तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वायर्स आती हैं, ठीक है, जो भी तुम अपने घरों में यूज करते हो, दीज ऑल इलेक्ट्रिकल वायर्स आर बेस्ड ऑन दिस particular topic, critical thickness of insulation, the insulation that is provided outside your home wires, that is having some important value that you have to calculate. Okay, you have to cap that value to certain diameter, so that the temperature of the wire remains constant during the transfer of the current. Okay, तो जो हमारा करंट ट्रांसफर होता है जिस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में हमें क्या करना होता है कि जो वायर है वो हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रहे, उसका टेम्परेचर ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फिर हीट का भी लॉस होगा और तुम्हारी एनर्जी का भी लॉस होगा, एंड देयर दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द इंसुलेशन आल्सो। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द टेम्परेचर इनसाइड the wire or inside the insulation remains constant. Okay, so it will remain at a steady state. That means if the temperature is some temperature, wire is at some temperature T, it should remain at T during the flow of the current. Okay, तो critical thickness of insulation होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम insulation system को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, so as you can see, the what is the insulation system? The thermal insulation is applied in many situations, as you can see. In engineering application, when the heat flow rate from a system has to be reduced or increased. ठीक है, तो जहां पे भी हमें या तो रिड्यूस करना हो या इंक्रीज करना हो हीट फ्लो रेट को, वहां पे हम थर्मल इंसुलेशन को यूज करते हैं। ठीक है, सच केसेस आर इंक्लूड द लैगिंग ऑन हीट पाइप्स, जो हीट पाइप्स होती है उसमें जो लैगिंग प्रोवाइड करते हैं, द थर्मस बॉटल, जो थर्मस बॉटल आपके पास होती है, कोई भी थर्मोप्लास्क होता है। ठीक है, रबराइजेशन, कहीं पे रबर वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, देखते होगे तुम लोग। द इलेक्ट्रिकल केबल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, द इलेक्ट्रिकल केबल्स। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिकल केबल्स वी प्रोवाइड द इंसुलेशन। ओके, so what is the thermal insulation? Basically in the thermal insulation we use a material that have a lower thermal conductivity. Okay, so the thermal insulation is a low thermal conductivity material, or the combination of material which is mainly used to minimize or maximize the heat flow rate from
फ्रॉम अ सिस्टम, ठीक है। जो तुम्हारा सिस्टम है उससे हीट फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं थर्मल इंसुलेशन का। ज्यादातर केस में हम घटाने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। The thermal insulations are put on the surface exposed to the certain environment. They offer the additional thermal resistance in the path of heat flow. So क्या होता है basically when you add some thermal insulation, the heat transfer rate decreases. Okay. तो जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो हमारा डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम थर्मल इंसुलेशन को ऐड करते हैं। दिस इज द जनरल व्यू, ठीक है। बट लेटर इफ यू विल सी it may be possible that adding the thermal insulation will increase the heat flow, okay, it may be also possible, so we will discuss that case also, but in general you assume that अगर किसी भी मटेरियल है अगर उसमें हम एक्स्ट्रा थिकनेस डालेंगे तो क्या होना चाहिए कि उससे जो हीट लॉस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस एक तरह से होगा जो हम थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता अगर हमारी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ द सिलेंडर्स, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर गेट एग्जाम इज कंसर्न। गेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा जो ये वाला एग्जाम है यूनिवर्सिटी का उसमें भी इसका न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी एवरी ईयर आता ही आता है, ठीक है। तो आएगा ही आएगा, इससे क्वेश्चन समझ लो, मान के चलो ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। सो क्या होता क्या है, देखो बेसिकली कंसीडर अ लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के अप्लाइड ऑन अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस आर, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस आर है, ठीक है, R1 है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक हमने लेयर लगा दी, ठीक है। ये हमारे पास R1 ये देख सकते हो, इसका जो रेडियस R1 है इसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन लगाया, दिस इज द इंसुलेशन एज यू कैन सी, ठीक है। द आउटर सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट T इंफिनिटी, मतलब यहाँ का जो बाहर का ये जो टेम्परेचर देख रहे हो, इस सिलेंडर के बाहर जो एयर फ्लो कर रही होगी या एयर जो होगी, नेचुरल कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरल कन्वेक्शन से जो एयर फ्लो कर रही होगी दैट टेम्परेचर ऑफ दैट एयर इज T इंफिनिटी। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एज यू कैन सी दिस इज गिवन बाय H, okay, or R1 is the inside radius of your cylinder and R2 is the radius of the outer radius of this cylinder, ठीक है। जो कि थिकनेस हमने जो इंसुलेशन हमने अप्लाई किया है वो हमने कहां से कहां तक किया, ये जो आपका पूरा है ये पूरा आपका इंसुलेशन है, ठीक है। ये हमने इंसुलेशन अप्लाई किया, ठीक है। So if you will try to make the electrical analogy of this cylinder, अगर electrical analogy इस सिलेंडर की हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, how we will make the electrical analogy। देखो यहाँ पे दो हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे, एक तो जो इंसुलेशन तुमने लगाया है वो देख सकते हो, अंदर का टेम्परेचर T1 माना हुआ है, ये हमारा इनसाइड टेम्परेचर है दैट इज T1, ठीक है। द इनसाइड टेम्परेचर इज T1, okay, so inside temperature is T1 and the outside temperature, आउट में जो एयर फ्लो कर रही है उसका टेम्परेचर है T इंफिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर T1 से हम चलेंगे तो R1 रेडियस से R2 तक पहुंचेंगे, उस बीच में हमारे पास क्या आएगा, एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगा जो कि किसकी वजह से होगा, इंसुलेशन की वजह से होगा, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये आउटर सरफेस तक पहुंचे, यहां तक हमारे पास R इंसुलेशन है, ठीक है। फिर आउटर सरफेस जो होगा इसका मतलब यहां से जब आगे जाओगे तो उसके बीच में एक हमारा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस आएगा, जैसा तुम जानते हो मैंने कल भी बताया था तुम लोगों को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। कहीं से भी देख लो एक ही चीज है, आर इंसुलेशन एंड आर कन्वेक्टिव, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि इस तरीके से होगा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जनरली होता क्या है कि अगर हम किसी भी बॉडी को, अगर मान लो कि मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मान लो लेट अस अज्यूम दिस इज वन ऑफ द सरफेस स्लैब, बेसिकली दिस इज अ स्लैब, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द स्लैब दैट यू हैव, ये हमारे पास कोई स्लैब है, ठीक है। ये हमारे पास स्लैब है, ठीक है। इस स्लैब की अगर हम बोलें कि इस स्लैब का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, तुम सबको पता है कि जो आर होता है इस स्लैब का, ठीक है, वो क्या होता है L/Ka होता है, ठीक है। अगर कंडक्टिव की बात करें, इस स्लैब की कंडक्टिव रेजिस्टेंस की, ठीक है, कंडक्टिव की बात करें तो ये होता है, ठीक है। और अगर बाहर कुछ T इंफिनिटी, मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर है, कोई एयर या कोई भी हमारे पास फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है, तो जो आर कन्वेक्टिव है
उसकी वैल्यू क्या होती है 1/HA, ये तो वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर तुम क्या करो, देखो इसमें बेसिकली यहाँ पे ये जो L है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंडक्टिव की बात करें तो अगर हम L को इंक्रीज करेंगे तो इसका जो हमारा क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मींस इफ यू विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है, इफ यू विल इंक्रीज दिस L, if this L will be increased, what will happen, this conductive resistance will increase, okay, in the slab, as well as what will happen to this R convective. If we'll see, if we'll increase the L, तो इस कंडक्टिव रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकता है? अगर हम इसमें इसके L की वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब थिकनेस बढ़ाते हैं अपने स्लैब की, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, वो तो क्लियर है क्योंकि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या होगा, बता सकते हो? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा भाई, इसमें L है कहीं? इस बताओ, इस इक्वेशन में कहीं L है? इस इक्वेशन में कहीं L है? नो सर। तो फिर इंक्रीज क्यों होगा? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक कि यहाँ पे H कितना है इस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला जो एरिया है जो मैं हैच कर रहा हूं, समझ रहे हो, इस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो ये इस एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? ये जो A है इस पे कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं थिकनेस बढ़ा दूं तो? मतलब अगर इस L की वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूं तो इस एरिया पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होगी, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये एरिया क्या है, ये एरिया तो ये वाली हमारी, अगर इसको मैं A बोलूं और इसको मैं B बोलूं, इस वाली लेंथ को मैं A बोलूं, यहां से यहां तक की, नीचे तक की, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको A बोलूं और इसको मैं B बोलूं, तो ये एरिया कितना है, A इंटू B है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ाते भी हैं तो क्या होगा कि इसके कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर स्लैब है, स्लैब के केस में तुम अगर उसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट रह रहा है। देयर इज नो चेंज इन द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्लैब। ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो सिलेंडर होता है उसके केस में क्या होता है, अगर सिलेंडर की हम बात करें तो मैं यहां पे तुम्हें दिखाता हूं सिलेंडर बना के। ठीक है, लेट अस एज्यूम दिस इज वन ऑफ द सिलेंडर, दिस इज वन ऑफ द सिलेंडर, ओके, दिस इज वन ऑफ द सिलेंडर। अगर हम इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की, ठीक है, इनिशियली अगर मैं इससे बात करूं कि इसका जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है इस सिलेंडर का ये कितना होगा, तो ये ऊपर ही वैल्यू लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखनी है तुमने। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं कि ये सिलेंडर है जिसका आउटर रेडियस भी हम बना देते हैं कुछ, ये मैं मान लो मैंने बना दिया कोई आउटर रेडियस, ठीक है, सिलेंडर का, ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। अगर आर कन्वेक्टिव की बात करूं तो आर कन्वेक्टिव इसका क्या है, ln R2/R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई KL। ठीक है, अगर देखोगे तो यहां से जो यहां तक का ये है, ये हमारा R1 है, मतलब इनसाइड जो इसका रेडियस है वो R1 है और आउटसाइड रेडियस हमारा क्या है, R2 है। ठीक है, तो अगर देखोगे, अगर मैं इस सिलेंडर की थिकनेस को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, मान लो इफ वी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस सिलेंडर, ये सिलेंडर की जो थिकनेस है उसकी इंक्रीज करता हूं तो क्या चीज बढ़ेगी, R2 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, R1 तो कांस्टेंट है, इनसाइड रेडियस तो कांस्टेंट है, सो वेरिएबल तुम्हारा क्या है, R2 है। ठीक है, तुम्हारा वेरिएबल क्या है, R2 है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के रेजिस्टेंस हो गए। अगर मैं बाहर बोलूं कि कोई फ्लूइड T इन्फिनिटिव से फ्लो कर रहा है जिसकी जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है वो अगर H है, तो दो रेजिस्टेंस हो गए, एक तो R कंडक्टिव हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, R कन्वेक्टिव ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो R कन्वेक्टिव होगा, इस सिलेंडर का जो R कन्वेक्टिव होगा, R कन्वेक्टिव, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई तुम लोगों को, 1/HA ही होती है, लेकिन यहाँ एरिया किसका आता है, सिलेंडर का एरिया आता है, तो 1 ये क्या आता है, 2 पाई, जो R होगा, मतलब R2 अगर है तो यहाँ पे R2 आता है बेसिकली, अगर बाहर का हम ले रहे हैं तो बाहर में हमारा R2 आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, L आता है। ठीक है, क्योंकि जो एरिया होगा सिलेंडर का, H तो होगा ही होगा, H तो होगा ही। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है एरिया में, यहाँ पे क्या आता है, 2 पाई R2 इंटू L आता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं,
अगर हम इस थिकनेस, ये जो सिलेंडर है इसकी थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, इफ विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस सिलेंडर, देन व्हाट यू विल इंक्रीज, द R2 विल बी योर वेरिएबल, R2 यू विल इंक्रीज, ठीक है। सो इफ विल सी दिस इक्वेशन, व्हाट विल हैपन, ठीक है, अगर हम R2 बढ़ाते हैं तो तुम मुझे ये बताओ कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? थिकनेस अगर सिलेंडर की हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिव सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? R2 बढ़ाने, बढ़ेगा ना, कंडक्टिव बढ़ेगा सर। कंडक्टिव बढ़ेगा। अगर हम R2 को इंक्रीज करते हैं तो R कंडक्टिव जो रेजिस्टेंस है सिलेंडर का बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, R2 के, LN R2 के प्रोपोर्शनल है, तो ये तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम R2 को इंक्रीज करते हैं तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या होगा, ध्यान दो जरा, व्हाट विल हैपन टू दिस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस? ये कंडक्टिव नहीं है, ये कन्वेक्टिव है, ये गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि तुमने क्या किया, देखो यहाँ पे R2 को बढ़ाया है, R2 को बढ़ाओगे तो R2 क्या है, 1/R2 के प्रोपोर्शनल है, जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R2 के प्रोपोर्शनल है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/R2, दैट्स व्हाई इफ विल इंक्रीज दिस R2 देन दिस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। सो अब देखो, ये तुम्हारे माइंड में फिगर बन जानी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास मान लो तुम्हारा पेन है, उसके ऊपर मैं एक इंसुलेशन लगाता हूं, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ बढ़ेगा कि घटेगा। अब मैं कहूं कि एक इसके ऊपर, तुम्हारे पेन के ऊपर मैंने एक इंसुलेशन लगाया, ठीक है, एक इंसुलेशन पहले से है तुम्हारे पेन के ऊपर, दूसरा इंसुलेशन मैंने लगाया कोई, ठीक है, और मैं कहूं कि जो टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारे पेन पे है वो तो दो चीजों का समेशन होगा भाई, आर कंडक्टिव प्लस आर कन्वेक्टिव, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैंने तुम्हारे पेन के ऊपर इंसुलेशन लगाया, ठीक है, तुम ये बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बता सकते हो? बता सकते हो? सर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। हाँ, तो बता नहीं सकते, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, बता नहीं सकते कि बढ़ेगा कि घटेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन प्रीडोमिनेट करता है, आर कंडक्टिव प्रीडोमिनेट करेगा कि आर कन्वेक्टिव प्रीडोमिनेट करेगा, ठीक है, इस चीज पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई जो टोटल रेजिस्टेंस है सिलेंडर का, अगर उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारा आर कन्वेक्टिव तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और आर कन्वेक्टिव क्या है, आर कंडक्टिव क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है और ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक हमें फाइनल सिचुएशन चाहिए जिससे हम ये पता लगा पाए कि किस वैल्यू पे जो ये चीजें हैं एक जाकर के एक मैक्सिमम पे पहुंच रही है। क्योंकि देखो एक टाइम आएगा जब तुम इसके ऊपर इंसुलेशन इनिशियली जब ऐड करोगे, उस केस में तो आर कन्वेक्टिव डिक्रीज होगा, आर कंडक्टिव इंक्रीज होगा, लेकिन कौन सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब इनिशियली इंसुलेशन तुम ऐड करते हो तो इसके जो डिक्रीज होने का रेट है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो ज्यादा लंबी है, मतलब कन्वेक्टिव ज्यादा डिक्रीज होता है और कंडक्टिव कम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जब इनिशियली तुम जस्ट अप्लाई करना शुरू करते हो ना एक थिकनेस तक, तो उस तक तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डिक्रीज करता है, इनिशियली डिक्रीज करता है, उसके बाद फिर से ये इंक्रीज करने लगता है, एक पर्टिकुलर जब हो जाता है टाइम, तो उसके बाद ये दोबारा से इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो यही चीज जिस पॉइंट पे जो हमारा हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो हमारा मैक्सिमम हो जाए या हमारा टोटल रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम हो जाए, वही हमारा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, और वहां पे जो रेडियस होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहां पे मैक्सिमाइज या कहां पे मिनिमाइज हो रहा है, तो इसके लिए बहुत आसान है। देखो तुम्हें ये पता है कि कोई भी हॉलो स्फीयर है, ये अगर हॉलो सॉरी ये अगर हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और मैं कहूं कि भाई इसका आर टोटल लिखो, तो तुम कैसे लिखते हो आर टोटल? आर टोटल तुम लिखते हो आर इंसुलेशन, यहाँ पे तो इंसुलेशन दिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसुलेशन लिख रहा हूँ, कंडक्टिव की बजाय मैं इंसुलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस आर कन्वेक्टिव। अगर इसका मैं बोलूं कि आर टोटल लिखोगे तो यही लिखोगे भाई, आर इंसुलेशन प्लस आर कन्वेक्टिव, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि इसकी हीट फ्लो कैलकुलेट करो, तो किस इक्वेशन से करते हो, इस इक्वेशन से करते हो, जैसा यहां देख सकते हो T1 माइनस, देखो यहां पे हमने ये माना है कि इनसाइड में हमने कोई फ्लूइड नहीं है जूम किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशन अपनी लगाई है वो लगाई है इसके बीच T1 और T इन्फिनिटिव के बीच लगाई है, ठीक है। तो T1 और T इन्फिनिटिव के बीच अगर हीट ट्रांसफर की इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, Q इक्वल टू क्या लिखोगे, T1 माइनस T इन्फिनिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है,
टोटल रेजिस्टेंस देख लो भाई क्या है, आर इंसुलेशन प्लस आर कन्वेक्शन। तो ये हमने कर दिया भाई, आर इंसुलेशन प्लस आर कन्वेक्शन कर लिया, ठीक है। तुम्हारा जो वेरिएबल है वो क्या है, अगर मैं कहूं अब इसमें मान लो डाल देता हूं मैं वैल्यू, ठीक है, तो T1 माइनस टी इन्फिनेटिव को यही रहने दिया, ठीक है। आर इंसुलेशन को तो तुम लिख सकते हो ना भाई, हम तो कैलकुलेट कर चुके हैं, कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वही है हमारा, ठीक है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कंडक्टिव रेजिस्टेंस हमें पता है, दैट इज नथिंग बट ln R2 by R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई LK, ठीक है। ये तो वैल्यू हो गई इसकी आर इंसुलेशन की, ये आर इंसुलेशन की वैल्यू हो गई। और आर कन्वेक्टिव की अभी अभी मैंने तुम्हें वैल्यू बताई, ये 1/2 पाई R2 into L, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 2 पाई एल को ऊपर ले गए, तो 2 पाई एल को अगर ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा 2 पाई एल T1 माइनस टी इन्फिनेटिव ln R2 by R1 डिवाइडेड बाय K, ठीक है, प्लस 1/R2H, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में तुम्हारा वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में तुम्हारा वेरिएबल क्या है? क्या है वेरिएबल? भाई वेरिएबल क्या होता है, पहली बात तो ये बताओ मुझे। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, समझ रहे हो? वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। क्या एल की वैल्यू वेरी कर रही है? एल की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, मतलब एल कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। ये T1 कांस्टेंट रखा हुआ है, टी इन्फिनिटी कांस्टेंट रखा हुआ है। R1 is also constant because you are not changing the inside radius of the cylinder, ठीक है। So this R1 is also constant, this is also constant, okay. This K thermal conductivity is constant, this H is constant. So what is your variable? क्या इंक्रीज कर रहे हो तुम? थिकनेस इंक्रीज कर रहे हो ना, थिकनेस इंक्रीज कर रहे हो तो क्या चीज बढ़ रही है? R2 बढ़ रहा है। तो तुम्हारा वेरिएबल कौन सा है? तुम्हारा वेरिएबल कौन सा है? R2। हाँ, तो R2 तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर आप तुम्हें ये पता चल गया कि R2 तुम्हारा वेरिएबल है और हमें ये चाहिए कि ये हीट कब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रही है, तो किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर देते हैं जीरो के, ठीक है। तो अगर हम ये निकालना चाहें फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर हीट ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करना चाहें तो हीट ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, जो ये अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास दिख रही है इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? जो हमारे वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? R2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? R2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। क्या निकल जाएगा? मैक्सिमा या मिनिमा निकल जाता है, तुम्हें पता है। तो अब हमें मैक्सिमा निकालना है, यहाँ पे निकल जाएगा भाई मैक्सिमा। मैक्सिमम कहाँ हो रही है क्यू की वैल्यू, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये सारी की सारी तो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इसको तो बाहर ले लेंगे सीधा का सीधा, ये तो बाहर ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया, ये तो बाहर ले लिया। तुम्हारी जो फाइनल क्वांटिटी है वो u बाय बी के फॉर्म में, ठीक है। तुम्हारा जो फाइनल इक्वेशन है वो u बाय बी के फॉर्म में, ठीक है। अब u बाय बी के फॉर्म में u की वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ये u नहीं है हमारा, क्योंकि ये वेरिएबल है ही नहीं इसमें, इस पूरी क्वांटिटी में कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो ऊपर है 1, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर है 1 और नीचे क्या है, नीचे ये जो टोटल है ये तुम्हारा क्या है, v है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है? R2 by R1 ln R2 by R1 अपॉन K प्लस 1/R2H। ये टोटल का टोटल तुम्हारा क्या है? ये क्वांटिटी v है, टोटल की टोटल क्या है? v है। समझ में आ गई u और v कौन है, ठीक है। अब u बाय v का डिफरेंशिएशन तुम लोग सबको पता है ना, u बाय v का डिफरेंशिएशन सबको पता है? यस सर। u बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नीचे क्या आता है? v स्क्वायर, यही आता है नीचे। और u इंटू क्या आता है? dv माइनस v इंटू du, यही आता है, यही तो आता है, u इंटू dv माइनस v इंटू du। तो बस कर लो भाई। देखो पहला तो देखो दूसरी टर्म में तो u इंटू v इंटू du है और u हमारा कितना है? 1 है, मतलब ये तो जीरो हो गया, दूसरी टर्म तो कुछ आएगी नहीं, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या करना है, बस u इंटू dv करना है, ठीक है, और तुम्हारा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे
देख लो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ये तो v स्क्वायर आ गया नीचे, ये टोटल तुम्हारा v था, नीचे वाली क्वांटिटी ये टोटल कितनी थी, v थी, तो ये v स्क्वायर लिख दिया, ये हमारा क्या है v स्क्वायर लिख दिया जो भी था, ठीक है। और ऊपर मैंने क्या बताया u इंटू डीवी, तो 1 इंटू डीवी मतलब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln r2 बाय r1 k प्लस 1 अपॉन r2 h का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 1 अपॉन k तो कांस्टेंट हो गया, ln r2 बाय r1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln का डिफरेंशिएशन को 1 अपॉन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन r2 बाय r1 होगा, तो वो क्या आ जाएगा r1 बाय r2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, फिर R2 अभी वेरिएबल हमारे पास बचा हुआ है, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेगा R2 बाय R1 को, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन R1 आ जाएगा, क्योंकि R2 उसमें से हट जाएगा, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को करके, ये फाइनल इक्वेशन लिख के मैं दिखा देता हूं, यहाँ से हो सकता है तुम लोग को समझ में ना आ रहा हो, तो मैं फाइनल इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। इस स्लाइड को यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखो मैं यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ तुम लोग को इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, टोटल क्वांटिटी जो Q आ रहा है, ठीक है, Q की ये वाली वैल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे, Q इज इक्वल टू 2 पाई L T1 माइनस T इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 अपॉन R2H, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है dq बाय dr2 को जीरो करना है, ठीक है, मतलब R2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसमें इसको u बाय v के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो u बाय v के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा dq बाय dr2 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। u हमारा जैसे मैंने बताया 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, 2 पाई l T1 माइनस T इन्फिनिटी, दिस इज ऑल कांस्टेंट, ठीक है। तो u बाय v हो जाएगा, ये हमारा नीचे v स्क्वायर आ जाएगा, ये टोटल क्वांटिटी हमारी क्या होगी v होगी, ठीक है। तो v स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो v स्क्वायर का मतलब ln r2 बाय r1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 अपॉन r2h, इसका तो होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे क्या करना है, जैसा मैंने बताया था u इंटू डीवी, ठीक है। तो u की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू डीवी, डीवी का मतलब ये हमारा v है, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसा होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln पहले ln r2 बाय r1 डिवाइडेड बाय k है, ठीक है। तो 1 बाय k तो कांस्टेंट हो गया, और ln r2 बाय r1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन r2 बाय r1 होगा, ठीक है। 1 अपॉन r2 बाय r1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये r2 बाय r1 का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि r2 हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो R2 बाय R1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन R1, ठीक है। ये dV हो गई, dV की वैल्यू हो गई, प्लस हमारे पास ये वाला भी क्वांटिटी है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये dV अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। पहला जो हमारा टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुई, तो दूसरी जो टर्म है ये है हमारी 1 अपॉन R2 इंटू H, ठीक है। तो 1 अपॉन R2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, माइनस 1 बाय R2 स्क्वायर होगा, ठीक है। और H पहले से ही है तो वो तो कांस्टेंट, तो माइनस 1 बाय R2 स्क्वायर इंटू H, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यही वैल्यू देखो इसमें बस क्या किया कि R2 को R1 को ऊपर ले गया है, तो आगे नेक्स्ट स्टेज में इसको जो है इसको इस तरीके से लिख दिया है इसने, ठीक है। इसको लिख दिया है 2 पाई L T1 माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको इसने लिख दिया इस तरीके से 1 बाय K R1 बाय R2 लिख दिया है, ठीक है, इंटू 1 बाय R1 तो होगा ही होगा, माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर H, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो हमारा V स्क्वायर था, ठीक है, ln R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 upon R2H square. Okay, so this is the equation that you have till now. ठीक है, अभी तक ये है। अब इस इक्वेशन से आगे देख लेते हैं। तो ये वैल्यू को हमें क्या करना है, जीरो इक्वेट करना है। तो जीरो कैसे इक्वेट करेंगे, देखो अब इस वैल्यू में अगर देखोगे तो क्या जीरो हमारा हो सकता है और क्या जीरो नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करोगे, देखो ये वैल्यू तो कभी जीरो हो नहीं सकती। ये जो हमारे पास दिख रहा है 2 पाई के एल जो दिख रहा है तुम्हें, ये जो दिख रहा है 2 पाई एल के, ये सारी वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, ठीक है। और ये जीरो हो नहीं सकती क्योंकि ये जीरो होगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये जो बीच की वैल्यू आ रही है ये हमारी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये जो बीच की ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है इसको तुम्हें जीरो करना है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है इसको हम जीरो करके देख लेते हैं, ठीक है।
तो यही से इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, ठीक है, ये हमारी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, ये भी हमारी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। तो क्योंकि इसको हमें क्या करना है, जीरो को इक्वेट करना है, जैसा कि हमें मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि इसको जीरो को इक्वेट करना है, ये देख सकते हो जीरो को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जीरो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये बीच वाला जीरो होगा। तो बीच वाला अगर जीरो होगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई 1/k, ठीक है, इसमें से k भी जीरो नहीं होगा तो k को भी अभी हटा देंगे, ठीक है। ये R1/R2 इंटू 1/R1, ठीक है, -1/R2² इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी R1 हमारा कट गया, मतलब 1 हाँ, ये हमारा k मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 1/R2k, ठीक है, -1/R2²h, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, R2 की वैल्यू निकालनी है कि किस थिकनेस पे जो हीट ट्रांसफर है वो हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसको कर दो 1/R2k विल बी इक्वल टू 1/R2²h, ठीक है। तो ये R2 और R2 एक गया, ठीक है, तो हमारे पास R2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, k/h। So this R2 that is coming out to be k/h, where you must remember that this R2 in this equation, this k is the thermal conductivity of the insulation material। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो आउटर लेयर हमने अप्लाई करी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। सो मैं आगे यहाँ पे इसी को इंसुलेशन लिखना चाहूंगा, के इंसुलेशन अपॉन एच लिखा है, ठीक है। के को हमने के इंसुलेशन लिखा है बस इसलिए कि तुम याद रख पाओ कि R2 इक्वल टू के इंसुलेशन अपॉन एच, मतलब जो हमारा R2 है, अगर के तुम्हारे पास दिया हुआ है, अगर तुम्हारे पास एच दिया हुआ है, तो तुम R2 कैलकुलेट कर सकते हो कि एट विच वैल्यू द हीट ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें आगे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू आई हमारे पास R2 इक्वल टू R क्रिटिकल, यही हमारा जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होगा वो होगा, दैट विल बी गिवन बाय k/h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम वही चीज बता रहा है जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। होता क्या है कि ये जीरो से लेकर के यहाँ पे जो है इधर हमारे पास वेरिएबल हमने रखा हुआ है, दैट मीन्स द R2 ऑन x एक्सिस वी हैव द वेरिएबल एंड y एक्सिस वी हैव q, y एक्सिस में हमारे पास क्या है, q है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, देखो R1 से और R2 अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम R1 से अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर हम अगर जहां यहां से हमने इंसुलेशन अप्लाई करना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं देख सकते हो यहाँ पे हीट ट्रांसफर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट पे जाकर के ये मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिसपे वो मैक्सिमम हो रहा है, इसी की वैल्यू हमने निकाली है अभी अभी जो निकाला है हमने वो यही वाला पॉइंट निकाला है कि ये R2 इक्वल टू, जब तुम यहाँ पे R1 को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे R2 इक्वल टू k/h पे पहुंचोगे, ठीक है, तो ये जो हीट ट्रांसफर है वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद दोबारा से हीट ट्रांसफर जो है वो हमारा डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो इंसुलेशन अगर तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर एडिंग द इंसुलेशन, ठीक है, इंक्रीजेस द हीट लॉस अप टू द सर्टेन रेडियस ऑफ सिलेंडर, कुछ रेडियस तक तो जो हीट लॉस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि आर कन्वेक्टिव ज्यादा जल्दी डिक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू द आर कन्वेक्टिव ज्यादा डिक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू द आर कन्वेक्टिव जितने अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन उसके बाद इस पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि आर कन्वेक्टिव ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू जितनी तेजी से हमारा आर कन्वेक्टिव डिक्रीज करता है। तो इसलिए इस पॉइंट के बाद जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो अब अगर इसको आगे दिखाना चाहूं मैं तो आगे तुम देख सकते हो, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं अभी कि आर कन्वेक्टिव और आर जो हमारा कंडक्टिव है इसके बीच क्या रिलेशन है, जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। देखो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है आर टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये मैं तुम्हें को बता चुका हूं कि आर टोटल हमारा बेसिकली दो चीजों से बना है, आर कंडक्टिव या आर इंसुलेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यही कंडक्टिव है, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आर टोटल जो होता है, ठीक है, आर टोटल बेसिकली होगा हमारा आर इंसुलेशन, ठीक है, या आर इंसुलेशन प्लस आर कन्वेक्टिव, ठीक है।
अब देखो होता क्या है, इनिशियली मतलब जब तुम्हारा जो थिकनेस थी वो R1 थी, इनसाइड सिलेंडर का जो रेडियस था वो R1 था, इनिशियली जब तुम अप्लाई करना शुरू करते हो तो ये ना बहुत तो उस केस में क्या होता है, ये धीरे से बढ़ता है, ये इसका अमाउंट कम बढ़ता है और ये बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। लेकिन ये जो चीज है वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही होता है, ठीक है। अगर तुम ये कब तक होता है कि ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है तुम्हें, इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। ये कब तक होता है, ये होता है R इजिकल टू वैन R इजिकल टू R2, ठीक है। मतलब जो तुमने क्रिटिकल थिकनेस निकाली है तब तक ये चीज होती है। अगर क्रिटिकल थिकनेस के बात करें तो क्या होता है, क्रिटिकल थिकनेस के बाद अगर बात करें तो क्या होता है कि जो R टोटल होता है, ठीक है, वो R इंसुलेशन अपॉन R कन्वेक्टिव है, ठीक है। अगर R क्रिटिकल के बाद देखोगे तो ये वैल्यू ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू जितनी तेजी से ये डिक्रीज करती है। उस केस में फिर ये बढ़ जाता है, आर इंसुलेशन बढ़ जाता है, तो इसीलिए उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बिफोर R इक्वल टू R2 दिस टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड आफ्टर R इक्वल टू R2 दिस टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसीलिए अप टू R इक्वल टू R2 जो हीट ट्रांसफर रेट है वो हमारा क्या होता है। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने तुम्हें बताया कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है एक हमारा पॉइंट तक जो है वो डिक्रीज करता है, उसके बाद दोबारा से इंक्रीज करता है। तो ये यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो ये हमारा रेडियस है जो कि हम बढ़ा रहे हैं, मतलब वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, इनिशियली तुम देखो यहाँ पे तीन चीजें बनी हुई है, अगर देखोगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस का कर्व बना हुआ है, ठीक है। ये जो कर्व दिख रहा है तुम्हें, ये है सरफेस रेजिस्टेंस। सरफेस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट आर कन्वेक्टिव। ये क्या दिखा रहा है, आर कन्वेक्टिव को दिखा रहा है, ठीक है। और एक देख सकते हो यहाँ पे ये इंक्रीज जो कर रहा है ये हमारा किसकी वैल्यू है, ये है आर कंडक्टिव की वैल्यू है, ये आर कंडक्टिव या फिर आर इंसुलेशन, ठीक है, जो तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसकी वैल्यू है आर इंसुलेशन की वैल्यू। तो देखो इनिशियली होता क्या है ना कि इनिशियली ये ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है, कहां तक ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है, इस पॉइंट तक, आर क्रिटिकल तक ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है, और ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन आर क्रिटिकल के बाद ये जो आर कंडक्टिव की वैल्यू है ये बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है, ठीक है। मतलब जो हमारा ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस है आफ्टर द क्रिटिकल थिकनेस it increases by very large amount as compared to the R convective. That's why the total resistance increases after this critical point. इसीलिए ये जो critical point है इसके बाद अगर देखोगे तो जो total resistance है after adding the insulation increases, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा था। वो क्यों हो रहा था, मैंने तुम्हें बता दिया कि उस केस में जो आर कन्वेक्टिव है वो क्या होता है कि वो ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है। मतलब यहां से यहां तक आर कन्वेक्टिव डोमिनेट करता है और इस पॉइंट के बाद कौन डोमिनेट करता है, आर कंडक्टिव डोमिनेट करता है, ठीक है। यहां जो डोमिनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, आर कन्वेक्टिव कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद जो डोमिनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, आर कंडक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो ये है। सो यहां देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, when the outer radius of insulation is increased, जब तुम outer radius of insulation increase करते हो, it increases the material resistance, that means R insulation, ठीक है, material resistance को increase कर रहा है, ठीक है, while the outer resistance R convective decreases, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज, क्लियर है? यस सर। R2 इज इक्वल टू R क्रिटिकल तक कौन डोमिनेट कर रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है, R2 इक्वल टू R क्रिटिकल तक कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा कौन डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये बता दो, कंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और R क्रिटिकल के बाद कौन डोमिनेट कर रहा है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा R क्रिटिकल के बाद इट विल इंक्रीज, ओके। So this is all about the this is all about the critical thickness of insulation, ठीक है, of the cylinder, ठीक है। Similarly, as we have finded out the equation of, or we have calculated the critical radius of insulation for the cylinder, similarly you can calculate also the critical radius of the sphere, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं यहाँ पे तुम लोगों को critical radius of sphere,
मैं डायरेक्टली तुम लोगों को यहाँ पे वैल्यू बता देता हूं। जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होगा तुम्हारा स्फीयर के लिए, दैट विल बी गिवन बाय 2k/h। सिलेंडर के लिए कितनी वैल्यू आई, k/h, और स्फीयर के लिए कितनी आएगी, ये हमारा किसके लिए है, स्फीयर के लिए, ठीक है। और सिलेंडर के लिए कितनी वैल्यू आई, आर क्रिटिकल की वैल्यू कितनी आई सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए आई k/h। बट यहां पे ध्यान तुम लोगों को ये रखना है कि ये जो k है, ये k किसका है, ये इंसुलेशन का है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि k इंसुलेशन का है, इसमें भी ये k इंसुलेशन वाले मटेरियल का k है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी बाद में जब हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये जो इंसुलेशन बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं किसी वायर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें वायर की भी थर्मल कंडक्टिविटी दी होगी और इंसुलेशन की भी थर्मल कंडक्टिविटी दी होगी, ठीक है। तो वहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी थर्मल कंडक्टिविटी थी इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में ध्यान रखना, इस इक्वेशन में हमेशा किसकी थर्मल कंडक्टिविटी आती है, इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसका देख लेते हैं, और इससे शायद हम लोगों को और भी ज्यादा जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वी विल डिस्कस दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। टाइम कितना हो रहा है, मैंने एक क्विज भी तुम लोगों के लिए डाला हुआ है 11:49। टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ये न्यूमेरिकल हम लोग आज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है।